Morning, dear students. How are you? So we are meeting after a very long time as your PTs are going on, and as your GK PT is over now. So we are going to start with our annual syllabus, and the syllabus which is flashing on your screen is your annual syllabus, right? So today we are going to cover only two chapters, that is the Mind Bloggers and Know Your Game. And tomorrow you'll get some more activities. Tomorrow is your exams. I am not going to disturb you. Whenever you come to school, we are going to study the rest of the chapters in the class as well. Okay. So dear students, let's begin with our virtual classroom of general knowledge, and hopefully this is the last virtual class, as very soon you are going to come to the school and having the face-to-face interaction with the teachers, with your friends. So I hope you will enjoy this time period also. So let's begin. So first we are going to start with the chapter that is Know Your Games. Mind Bloggers of course we are going to do, but that's a twisted chapter. बहुत सारी riddles है इसमें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. But हम start करेंगे Know Your Games से. Okay, so let's begin. So let's begin with the Know Your Games. Today is 11th of February. Okay, and before starting the virtual classroom of general knowledge, I request you all to join your hands and close your eyes for a short prayer. Thank you God for everything. Thank you God for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So dear student, welcome once again in the virtual classroom of general knowledge. Today we are going to start with the chapter Know Your Game. Page number is 75. 75 is your page number. Fine. Okay, so let's begin. So what they are saying, identify the video games from the given clues. Okay, usually boys शायद ज़्यादा इंटरेस्ट लें, बिकॉज वीडियो गेम्स मैं ये नहीं कह रही कि गर्ल्स नहीं खेलती हैं, गर्ल्स भी खेलती हैं, बट वो थोड़ा कम इंटरेस्ट के साथ खेलती हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. आंसर्स आर ऑलरेडी रिटन हियर, बट आई कैन एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर गेम की ये किस गेम के बारे में बात कर रहा है. इन दिस इनोवेटिव एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम, players control criminals and attempt to increase their standing by completing missions in various virtual cities. सबसे पहले तो ये गेम वर्चुअल सिटीज़ में खेला जाता है, जैसे आजकल आप वर्चुअल क्लासेस ले रहे हो, ऐसी वर्चुअल सिटीज़ में खेला जाता है. इट इज़ एन इनोवेटिव एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम. एक इनोवेटिव एक्शन एडवेंचर है. प्लेयर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्रिमिनल्स को और अटेम्प्ट करते हैं, मतलब से कि काइंड ऑफ उन्हें 10 से 15 पर्सनस होते हैं वर्चुअल, और उनको वो मिशन कंप्लीट करना होता है बाय किलिंग देम. इन इट्स इनिशियल इंस्टॉलमेंट, जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, द गेमर कुड व्यू एंड एंगेज इन कार जैकिंग, robberies, gunfights and other crimes. Released in 2013. 2013 में ये आया था. The fifth sequel of this game has been set in the fictional state of Los Santos. Fifth sequel यानी कि fifth session, वो season होता है ना वो. The game name is Grand Theft Auto. What is the name of the game? Grand Theft Auto. Next is, in this racing video game, the player chooses a car and aims to win the race. It's simple. ये तो मैंने भी खेला हुआ है. That is the Need for Speed No Limits. इसमें आप सिंपल एक कार चूज करते हो and you do a race, और बस सिंपल जीतने के लिए. The player must win a series of races in order to unlock vehicles and tracks. Police Pursuit is a part of most games in the series. In 2015, the company brought out its first original title exclusively for mobile devices. मतलब फर्स्ट जो इन्होंने सीरीज मोबाइल डिवाइसेस के लिए लाए थे वो था नीड फॉर स्पीड, दैट इज़ द नो लिमिट. इसमें क्या होता है कि आपको एक मतलब लेवल्स होते हैं कि आप सारे लेवल्स जो इन्होंने दे रखे हैं वो आप क्लियर करो, एंड देन आपको सारे उसके व्हीकल्स मिलेंगे, जो भी कार्स हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, और फिर आपको मतलब अनलॉक होते चल जाएंगे, एंड द पुलिस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस. थर्ड वन, दिस ऑगमेंटेड रियलिटी गेम प्लेड ऑन स्मार्टफोन. सबसे पहले तो ये स्मार्टफोन्स पे खेला जाता है. हैज़ बीन अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस अपॉन इट्स रिलीज इन 2016. जब 2016 में ये आया था तो एक ब्लॉकबस्टर रहा था. The game uses smartphone's GPS location and real world map. गेम क्या करता है, आपके एक तो GPS लोकेशन को ट्रैक करता है और ऐसे रियल वर्ल्ड मैप आपको दिखाता है. द प्लेयर्स प्ले बाय catching little virtual monsters in real world places near
their phone location and training them to battle each other. मतलब वो छोटे छोटे से पोकेमॉन, जैसे गेम का नेम है पोकेमॉन गो, छोटे छोटे से वर्चुअल मॉन्स्टर्स होते हैं जो उनके आसपास होते हैं, आसपास इन द सेंस वही जो उनके प्लेयर्स होते हैं, जब इंटरकनेक्ट सिंक करके नहीं खेलते, जैसे आप लोग पबजी खेलते हो तो बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं, ऐसे. ठीक है. द लास्ट वन इज दिस वीडियो गेम ऑन इट्स डेब्यू इन 2003. कब आए थे? 2003 में. यूज द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज ए सेटिंग. सेटिंग्स में क्या था? वर्ल्ड वॉर सेटिंग हमने लिया था, allowing players to see the war through the eyes of American, Soviet and British soldiers. तो ये जो वॉर है वो हम देख सकें लाइक अमेरिकन जैसे उसे देखते थे, सोवियत देखते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स देखते थे. द सीरीज ब्रॉट न्यू एडवांसेस टू द फर्स्ट पर्सन शूटर genre, winning numerous Games of the Year awards. The popularity of the game resulted in the multiple sequels and expansions. Usually हुआ क्या, जब लोगों ने देखा कि मेकर्स ने देखा कि ये गेम तो बहुत ज़्यादा प्ले किया जा रहा है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस आने लगे, मीन्स वही आपके वन बाय वन उसके पार्ट्स आने लगे. एंड द न्यू वर्जन्स आर रिलेटेड टू द कोल्ड वॉर एंड रोबोटिक वारफेयर. सो जो न्यू वर्जन्स हैं वो किससे रिलेटेड है? कोल्ड वॉर से एंड रोबोटिक वॉरफेयर. The game name is Call of Duty. Okay, so we have done all the 4 games, video games, and I hope interested है. किसी का मन करे तो go through your Play Store, download करिए and खेलिए. Yes, but after your PTs, जब PTs आपके ख़त्म हो जाए. ठीक है. Okay, so the last chapter of today is that is the mind bloggers. So let's begin with our next chapter, that is the mind bloggers. इसमें बहुत सारे riddles हैं. आंसर्स मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके आंसर्स लिखे. ओके, सो लेट्स बिगिन with our next chapter, that is the mind blogger. So dear students, mind bloggers. Okay, the first question is, two sisters live in twin towers. One of them is fair, other is dark. One is from the sea and the other is from land. Who are they? 2 sisters हैं, वो ट्विन टावर्स में रहती हैं. एक गोरी है, एक काली है, एक सी से बिलोंग करती है, एक लैंड से बिलोंग करती है. तो ये कौन है? कौन है? ओके, आई विल गिव यू अ हिंट. ये फूड में यूज़ होती है एंड दे मेक योर फूड स्पाइसी एंड सॉल्टी. डिड यू गेस? यस, द आंसर इज सॉल्ट एंड पेपर. क्या है इसका आंसर? सॉल्ट एंड पेपर. ऑल्दो आई एम सेंडिंग यू द आंसर्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, बट स्टिल फाइन. नेक्स्ट इज, व्हाट इज दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू यू बट अदर यूज इट मच मोर देन टू यू डू. एक्चुअल में ये चीज़ आपके बिलोंग करती है, आपकी है, लेकिन आपसे ज़्यादा उसे दूसरे यूज़ करते हैं. क्या है? Yes, you are correct. The answer is your name. सीधा नाम आपका होता है लेकिन लोग आपको ज़्यादा बुलाते हैं उस नाम से ना, मतलब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. Next is, the faster you run, the harder I am to catch what I am. जितने ज़्यादा तेज़ तुम भागोगे उतना ही ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट हो जाऊँगा कैच करने के लिए. कौन हूँ मैं? ओके, गिव यू अ हिंट. ये आपकी बॉडी से बिलोंग करता है. द आंसर इज ब्रेथ. सांसें होती हैं आपकी, आप जितना तेज भागोगे आपको सांसें चढ़ती रहेंगी लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाओगे. ओके, नेक्स्ट इज, द डर्टियर आई गेट द वाइटर आई बिकम व्हाट आई एम. जितना ज़्यादा मैं गंदा हूँगा उतना ही ज़्यादा मैं वाइट होता चला जाऊँगा. कौन हूँ मैं? द आंसर इज चॉक बोर्ड. आजकल तो आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हो, जैसे आप ब्लैक करते हो. पहले के टाइम पे ब्लैक बोर्ड यूज़ होते थे हम चॉक यूज़ करते थे. द आंसर इज चॉक बोर्ड. इट रन्स बट इट नेवर वॉक्स. वो दौड़ती है लेकिन चलती कभी नहीं है. इट हैज़ बेड बट इट नेवर स्लीप्स. उसके पास बेड भी है लेकिन वो कभी सोती नहीं है. इट हैज़ अ माउथ बट इट नेवर ईट्स. उसका माउथ भी है लेकिन वो कभी कुछ नहीं खाती. वॉट इज इट? Yes, the answer is river. What is the answer? River. I can see only when there is a light. मैं सिर्फ तभी देखता हूँ जब लाइट होती है. But I disappear when there is direct light. लेकिन मैं गायब हो जाता हूँ जब डायरेक्ट लाइट होती है. कौन हूँ मैं? The answer is, yes, you can see the answer on the page itself. The answer is शैडो. शैडो दिख रही है आपको क्योंकि इस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है.
Okay, seventh one is, oh my god, used this particular thing more than 2 or 3 times in our day, especially the girls and the ladies. When you peel my skin, you cry, but I don't. What am I? क्या कह रहे हैं? जब आप मेरे स्किन को पील करते हो तो आप रोते हो, लेकिन मैं नहीं. कौन हूं मैं? This thing belongs to the kitchen. Yes, the answer is onion. Okay. The next one is, before the discovery of Mount Everest, जब तक Mount Everest discover नहीं हुआ था, which was the highest mountain in the world? Highest mountain कौन सा था? हाईएस्ट माउंटेन स्टिल माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट ही था, वो डिस्कवरी तो बाद में हुआ है, उससे पहले भी तो वही था. द नेक्स्ट इज, द मोर इट इज द लेस यू सी. वॉज इट इज, जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना कम आपको दिखेगा. तो आंसर क्या हुआ? डार्कनेस. What is it that doesn't get wetter no matter how much rain falls on it? what ये कभी गीला नहीं होएगा जितनी मर्जी उस पर रेन पड़े चाहे. The answer is water itself. वाटर कभी गीला थोड़ी ना होएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गीला होता है. Everything begins with me, but everything doesn't end with me. सारी चीजें मेरे साथ ही शुरू होती हैं, लेकिन मेरे से खत्म नहीं होती हैं. It is time that ends with me. टाइम ही है जो मेरे साथ खत्म हो जाता है. क्या है? द लेटर. लेटर कैसे? जब आप लेटर लिखते हो, मतलब लेटर, सपोज आपने लेटर लिखा, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है, फर्स्ट लेटर जो है, स्टार्ट तो इसी से हुआ, लेकिन खत्म थोड़ी ना होता है. मतलब वो वर्ड कंबाइन कर लेते हैं ना, तो पूरा वर्ड बन जाता है. फाइन. नेक्स्ट इज, नेवर हैव आई लेफ्ट माई कॉर्नर, but I get to travel all over the world and that's an honor. What I am. मैंने कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ी, मैं कॉर्नर में ही रहा, लेकिन मैं फिर भी पूरा देश घूम कर आया हूँ, और मेरे लिए एक ऑनर की बात है. कौन हूँ मैं? द आंसर इज स्टैम्प. देखते हो ना, यहाँ पे लेटर पे छोटी सी स्टैम्प लगी हुई होती है कॉर्नर पे, ऐसे ऐसे से. तो स्टैम्प. Despite numerous holes on me, I can still hold a lot of water. What I am? मेरी बॉडी पे बहुत सारे होल्स हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारा पानी सोख सकता हूँ. कौन हूँ मैं? हम इसे अपने किचन में यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग द यूटेंसिल्स. हम डस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग आवर कार्स, आवर स्कूटीज, आवर बाइक्स. Yes, you guess it right. The answer is sponge. Never was I alive, but still I grow. Never did I have lungs, but still I breathe. What I am? The answer is fire. क्या है answer? Fire. Yes. And the rest of the question, that is 15 to 18, are your homework. ये आप लोग खुद करेंगे, and when you bring your book to the school, then I'm going to check it. Okay? So that's all for the today, students. Thank you so much.